I was selected for Cathay Pacific. First round I cleared for an air hostess. But I said I don't know somehow मुझे ना मीडिया में ही जाना है. खुशी मुझे यहाँ मिल रही है. So my parents told okay fine just go ahead. आपसे कभी किसी ने पूछा लाइक ओ सजनी रे? सभी लोग पूछते हैं. ओके नाइस. उन्होंने कहा कि आप उस टाइम पे एक आता था डिक्लोजन जेल करके आई डोंट नो आता है. उसकी एड आप करेंगी क्या? वी वांट योर डॉटर टू बी द फेस ऑफ दैट या एड के लिए. तो माय मॉम सेड या फाइन. दैट्स हाउ माय जर्नी स्टार्टेड ऑफ. कभी ऐसा हुआ जब एक टाइम आया हो व्हेन यू फेल्ट लाइक काम नहीं मिल पा रहा है, द इंडस्ट्री इज जस्ट मेकिंग मी फील इनविजिबल, आई थिंक आई शुड जस्ट क्विट? डिड यू एवर हैव दैट काइंड ऑफ अ टाइम इन लाइफ? नो. वाओ. नेवर. आई एम टेलिंग यू, इंडस्ट्री ने मुझे बहुत दिया. वो मैंने रिजेक्ट किए काम क्योंकि मैं यहाँ थी नहीं. आई वॉज अब्रॉड. बट ऐसा कोई समय नहीं आया जब मुझे ये कहना पड़ा कि मेरे पास काम नहीं है. टुडे ऑन मेरी कहानी मेरी जुबानी we welcome a powerhouse of talent, grace and resilience, actress Sajni Srivastava. With a career spanning over 2 decades, Sajni ji has created a remarkable space for herself in television, cinema and advertising. From iconic TV shows like Kayamat, CID, Ahat, वो रहने वाली महलों की, to memorable ad campaigns for brands like Rasna, MDH Masala, Clinic All Clear and many more, her journey reflects consistency, versatility and sheer dedication. An internationally recognized artist, awardee at many film festivals, a recipient of over 40 national and global honors, Sajni Srivastava is truly inspiring. Her story is not just about fame, it is about survival, self-belief and staying relevant in an ever-changing industry. Sajni ji, welcome to Meri Kahani, Meri Zubani. It's lovely having you on our show today. Thank you. And एक चीज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आपका नाम मुझे बहुत प्यारा लगा. मैं जब से we had this thing that you're coming on our show, like wow, ये बहुत ही यूनिक नाम है. I don't think इंडस्ट्री में किसी का नाम है नहीं. I'm the only one Sajni here. Wow. And everybody is Sajni because everybody loves me. So I'm really honored and What does Sajni actually mean, जैसे? Sajni is like adorable. Wow, you are adorable. Thank you. And आपसे कभी किसी ने पूछा like ओ सजनी रे? सभी लोग पूछते हैं. Okay, nice. So you've had a very long journey, like almost over 2 decades in the industry. How does it feel? Like do you feel accomplished, satisfied? या ऐसे कोई एक regret रह जाता है उस टाइम पे शायद मैं कुछ ऐसा कर देती तो better होता? ऐसा कुछ नहीं है. See, I'm still learning. I cannot say that I've accomplished everything because human wants are never satisfied. एक चाह हमेशा रहती है. I want to do something more relevant, something more good, And yeah, that hunt, that search is still there. Wow. Even though I've won many awards, I've done many shows, and फिर भी वो एक रहता है कि नहीं ऐसा एक कैरेक्टर हो, वैसा एक हो, तो वो रहता है. वो रहना भी चाहिए to keep that artist alive in you. Yeah. Wow. So you're still exploring stuff and wanting to work. Yes, definitely. So no regrets. I have no regrets at all. Okay. I shouldn't. किसी को भी नहीं होना चाहिए. See, आप जो कर रहे हो अगर आप उससे शिद्दत से करोगे, right, या आप पूरा अपना heart and soul डालोगे, you will never regret anything. Right. Unless वो आप half-heartedly karo, तो you'll have many regrets in life also. True. So I generally don't have any regrets. Thank you. So back then, like years ago, जब आपने join की थी TV industry, things were very different. Yeah. So as a female artist who's joining TV, did you face any challenges as such? I did. Because coming from no filmy background, right, no godfather, and making my name on own, yeah, I had really hard time because उस टाइम के अभी भी है, लोग उंगलियां उठाते हैं, नाम करते हैं. अरे many my relatives told my parents कि अरे बेटी को इस लाइन में डाल रहे हो, ये है वो. But I had only my parents का support, and nobody else, and उसी वजह से I'm still here sustained. Yeah. And second is my husband who has supported me
immensely. I mean, अगर वो नहीं होते या मेरे पेरेंट्स का नहीं साथ होता तो शायद मैं नहीं कर पाती. चैलेंजेस तो बहुत ही आए, मतलब कदम कदम पे आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो आपको गिराने वाले तो मिलेंगे ही. बट लुकिंग एट दैट, माय पेरेंट्स उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और ये कहते थे कि हमारी बेटी को जो अच्छा लगता है, उसको जो करना है, शी विल डू इट. हालांकि उनका भी था दिल कि मैं I was selected for Cathay Pacific. First round I cleared for an air hostess. But I said I don't know, somehow मुझे ना मीडिया में ही जाना है. खुशी मुझे यहाँ मिल रही है. So my parents told, okay fine, just go ahead. Wow. So that's how I was able to take my steps further. नहीं होता या वो उनके बातों में आ जाते या मैं चैलेंजेस के अंदर वो कर जाती तो मैं शायद यहाँ तक नहीं पहुँच पाती. Yeah. So, you always wanted to be an actor, or how was it like? And I wanted to be in a media. Okay. मैंने सोचा नहीं था कि मैं एक्टिंग करूंगी, बट या आई हैड लव फॉर आर्ट्स. Okay. तो बचपन से ही मुझे डांस, एलोक्यूशंस, इसमें बहुत शौक था. लाइक माय मॉम यूज्ड टू से, बहुत पुराना डायलॉग है कि मुझे चलना भी नहीं आता था तो पकड़ पकड़ के डांस करती थी. तो दैट टाइम माय पेरेंट्स टोल्ड मी दैट शी इज डिफरेंट. she's not a normal child, she's gonna. तो इस तरह से शुरू से ही मुझे आर्ट्स में ही था, तो इंक्लिनेशन उसी तरफ था. तो आई हैड मेक अप माय माइंड, आई वाज वेरी क्लियर इन फॉर माय फ्यूचर मुझे क्या चाहिए. कई लोग होते कंफ्यूज्ड होते हैं कि करूं नहीं करूं, क्या करूं क्या नहीं करूं. आई वाज वेरी वेरी क्लियर दैट आफ्टर माय स्टडीज या ड्यूरिंग माय, एक्चुअली स्टडीज के दौरान ही मुझे मॉडलिंग के ऑफर्स आने लगे. तो दैट्स हाउ थिंग्स स्टार्टेड ऑफ. तो फिर And how did you get your first break in the industry? I started with modeling. तो there are मेरी पिक्चर्स किसी को अच्छी लगी. I was elocutions में कर रही थी, participate in my college. That's how somebody saw and then उन्होंने कहा कि आप उस टाइम पे एक आता था डिक्लोजन जेल करके, I don't know आता है, उसकी एड आप करेंगी क्या? We want your daughter to be the face of that या ad के लिए. तो my mom said yeah fine. That's how my journey started off. फिर Gold Spot Beauty Contest आया, तो I was the second runner up there. So एक लिंक से दूसरे लिंक, दूसरे से तीसरा लिंक, I started off and it went on and still going on. Right. So you've done a show with R. Madhavan. Yes, and I did. Was that like during your initial days? Yes, my initial days. I was very new in the industry and वो मेरा पहला शो था. माधवन मेरा पहला हीरो था. माधवन का भी वो पहला शो था as a lead. Okay. So उसके हालांकि वो बहुत अच्छे से शूट हुआ. that वो आ नहीं पाया on air किसी वजह से, because there was some rift between the producer partners. But माधवन के साथ मैंने एक और शो किया था जो जी टीवी पे आया था, संस्कार. Okay. राजू खेर जी का था वो शो. बहुत बड़ी कास्ट थी उसमें. तो वो भी मैंने किया था माधवन के साथ. So yeah, we are good friends. And today I'm so proud to see him the way he was my first crush. वो आज भी मेरा crush है. और मैं बिल्कुल नहीं शर्माती हूँ बोलने के लिए, and he knows it very well. And we are still good friends. And yeah, so that's how it is. Madhavan is one person who was like 5 decades of people crushing over him. Yes. Amazing. I saw some clips of yours, where you are in the same frame as Madhavan. Yeah. Shoot आपने किया था. So वो वही show है जो नहीं आ पाया था. Oh, but that's such a nice show. Yeah. बहुत बढ़िया. It was a multi cast का शो था. संजय मिश्रा, अंजू महेंद्रू, all big stars, and I played the lead in that. Sanam, that was based on me. Yeah, of course. Wow. Maddie was opposite me. Harsh Chaya was opposite me. सुभाष सिंह बहुत बड़े मेकअप आर्टिस्ट हैं. कैटरीना कैफ, प्रियंका चोपड़ा, उन्होंने मेरा मेकअप किया था. तो बहुत अच्छे, वो भी मेरे दोस्त हैं. तो बहुत है, कभी हो जाता है इस तरह से. But it's amazing that you've done such yes good work, of course. So you're very pretty. Thank you. I'm sure then you must have been like even more pretty. In the industry somehow we've always had this thing that people tend to approach women for casting couch and stuff. Have you ever been approached for something like this, like directly or indirectly? See,
इट्स एवरीवेयर आई गेस Right. सो. मैं ये नहीं बोल True. सकती हूँ दैट होता है. देर आर गुड पीपल, देर आर 1% बैड पीपल Yeah. ऑल्सो, Yeah. बट इट्स ऑल अपॉन यू, Hmm. योर डिजर्नमेंट एंड योर विजडम, Hmm. कि आप किस तरह से जाते हो, Right. है ना. Right. आपको वो आना चाहिए कि कौन सही है कौन गलत है. Hmm. Like I'm fortunate enough that I'm blessed with that discernment and wisdom. Right. Right. That approach तो होता है, लोग करते भी indirectly, directly भी, but how you go through that. I mean, Yeah. I never. पहली बात तो I maintained my dignity and I came till here. I never went through any casting couches. होता है, था, Of course. but I know how. You were नहीं very करना clear तो कि नहीं नहीं करना. करना. Very clear, very Right. clear. Hmm. काम दोनों देना तो दो यार भाई. Right. I don't want to go in all that stuff. Hmm. Hmm. I know myself. I'm from a well-to-do family. Right. I don't have to go through anything, True. boss. So this was very clear Hmm. शुरू से in my mind. But अगर वो अप्रोच करते तो किस तरह से ऐसे बोलते हैं, like, you know, because there are a lot of different kind of people. नहीं, सी बोलने के लिए तो बहुत बोलेंगे कि मैम आपको हम कास्ट करेंगे, बट ना. तो उनके बट ना में मैं शुरू समझ जाती. मैंने कहा इससे ज्यादा आप बोलिएगा नहीं, क्योंकि आप जो बोलना चाहते हैं वो मैं करने वाली हूँ नहीं. Right. आपको काम देना, आप दीजिए काम, Hmm. वरना आप बहुत सी ऐसे लोग पड़े हैं True. जिनको आप कर सकते हैं. तो डोंट वेस्ट माई टाइम. Yeah. सो आई वॉज वेरी रूड. आप रूड बोल सकते हो या एरोगेंट बोल सकते हो. आई वॉज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. Yeah. कि मैं ऐसे लोगों को एंटरटेन भी नहीं करती. Hmm. Hmm. You अप्रोच just तो cut बहुत them लोगों short. ने Yeah, की, yeah. कोशिश I'm की, sure, yeah. बट आई वॉज वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड वेरी ब्लंट. Hmm. बुरा लगता है तो लगे, आई डोंट केयर. Right. इट वॉज लाइक दैट. So, कभी ऐसा हुआ है जब आप किसी रोल के लिए कास्ट हुए हो एंड फिर वो चीज़ें चेंज हुई, फिर आपको रिप्लेस किया गया या वो प्रोजेक्ट ही वर्कआउट नहीं हुआ, यू नो दैट वन थिंग जिसका हमें हमेशा रिग्रेट होता है, काश वो वाला मैं कर लेती. सो समथिंग लाइक दैट. थे, बहुत से थे. किसी ना किसी वजह से होता ही था. अभी कुछ ग्रुपिज्म होता है, कुछ फेवरेटिज्म्स होते हैं. तो बट मैं सच बोलूं, मैंने रिग्रेट नहीं किया कभी. मुझे ऐसा आज मैं सोचती हूँ ना कि मैं कर लेती तो, बट वो नहीं किया ना, वो अच्छा ही था. आई ऑलवेज थिंक इन अ पॉजिटिव वे दैट वो कुछ अच्छे के लिए था. वो कोई चीज थी जिसने मुझे नहीं करने दिया या मैं वहां से हट गई, तो दैट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. आई वुड से दैट. I will never, I'm telling you ना, I never regretted for things. Even though आपको कुछ टाइम के लिए लगा होगा कि यार it was well deserved यार, या कुछ भी ऐसे. ऐसा बहुत ज्यादा तो नहीं हुआ, only minor, 1 or 2 projects शायद, but I never regretted because नहीं यार, मतलब that was good for me. कुछ तो उसमें अच्छाई छुपी थी ना, कि अगर वो मैं कर लेती तो पता नहीं वो किस उसमें चला जाता या किस ट्रैक पे हो जाती मैं. तो मैं उसको एज अ ब्लेसिंग ही मानती हूँ. आई नेवर टेक एनीथिंग नेगेटिवली, एंड उसको मैं ना, कहते हैं ना, भगवान का आशीर्वाद, उसकी जो कृपा है मेरे ऊपर. आप रिग्रेट्स नहीं रखते? बिल्कुल नहीं, नेवर. सो आपने अवार्ड्स देखे हैं, फेम देखा है, रिकग्निशन देखा है, यू नो, कभी ऐसा हुआ है जब एक टाइम आया हो where you felt like काम नहीं मिल पा रहा है, the industry is just making me feel invisible, I think I should just quit? Did you ever have that kind of a time in life? No. Wow. Never. I'm telling you, इंडस्ट्री ने मुझे बहुत दिया. वो मैंने रिजेक्ट किए काम, क्योंकि मैं यहाँ थी नहीं, आई वॉज अब्रॉड. बट ऐसा कोई समय नहीं आया जब मुझे ये कहना पड़ा कि मेरे पास काम नहीं है. So you can say I'm very fortunate, I'm very blessed and lucky in that sense कि मुझे कभी ये मौका नहीं मिला लाइफ में ये बोलने के लिए कि भैया काम. इनफैक्ट मैं अब्रॉड भी थी तो मुझे वहां तक कॉल आते थे, मैम ऑडिशन वहां पे आप वो करके बना. मैंने कहा बेटा ऑडिशन तो भेज दूंगी, सिलेक्ट भी हो गया, तू मेरी टिकट भेजेगा. I know. मैं आऊंगी तभी तो शूट कर पाऊंगी. तो so much love and affection and respect that I've got from this industry and people. It's an amazing thing. You've been blessed. Very much. Wow. You've also worked in shows like CID, Ahad, such memorable shows, you know. Many. Iconic shows, I would say. So how is it working with like Shivaji sir, Daya sir? And it's an amazing experience. See, working with all professionals. Right. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा. ऐसा कभी मेरे साथ, आज भी मेरे टर्म्स सबके साथ बहुत अच्छे हैं. एंड आई हैव वर्कड विद ऑल टॉप प्रोडक्शन हाउसेस. कयामत वाज एकता कपूर बालाजी का था वो. शी इज एन अमेजिंग प्रोड्यूसर.
एंड वो रहने वाली महलों की राशरी का, राशरी प्रोडक्शंस, very big production house. So I've worked with completely good people, Yeah. quality people, good co-artists, big artists whom I'm still in touch with. And so yeah, that's how I'm नए लोगों के साथ भी काम कर रही हूँ, Right. नए लोगों के साथ हाँ. भी कर रही हूँ. So my experience is very good. Nice. You've been very blessed in that. Yeah. Nice. So, Sajni ji, you're multi-talented. हम सब जानते हैं. You're an actor and a director as well. Yeah. Okay. So, tell us about your upcoming projects. See, before that I begin, I directed 6 movies, Okay. commercial movies. We have a production house in East Africa. Okay. तो वहाँ पे at the peak of my career, I went to East Africa, leaving the industry, taking a break from it. तो वहाँ पे मुझे मौका मिला to direct a film. And मेरी वो debut film won the best film award in Zanzibar International Film Festival. Wow. जहाँ पे around 60 to 70 countries participate करती. Right. That's how my journey began. I never assisted anybody. I never took any crash course of direction. Directly. But directly, I mean, I got the chance. I should say, very blessed and fortunate. तो इस तरह से डायरेक्ट अवार्ड्स का सिलसिला शुरू हुआ. वो फिल्म जर्मनी फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाई गई मेरी जो सेकंड फिल्म थी उसको भी अवार्ड मिला ज़ांज़ीबार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में. इस तरह से सिलसिला शुरू हुआ. आई केम बैक अगेन to India and started acting, but very choosy about my acting and projects and all. Yeah. So I wanted to do something creative apart from acting. मैंने सोचा यार क्यों ना शुरुआत करूं शॉर्ट फिल्म से. तो कुछ आइडियाज थे मेरे दिमाग में, तो आई कंसेप्चुअलाइज्ड माय ओन आइडिया. आई शॉट माई सेल्फ, आई एडिटेड माई सेल्फ. So my first short film was I Am Enough, which you can go on my YouTube channel and watch. By the grace of God, मैंने तो चलो अपलोड कर दी, but that film won around 10 to 15 awards nationally and internationally. Wow. And I was surprised, and that gave me a boost. Right. And अभी तक मैंने 4 short films बनाई हैं for my own channel. Sajni Shrivastava, kindly subscribe my channel too. So आप देख सकते हैं. And उस सारी फिल्मों को awards मिल चुके हैं. And सारे अलग अलग जॉनर्स के हैं. So इस तरह से मेरी जर्नी शुरू हुई. शौक बोलो या एक दिल में था कि एक्टिंग के अलावा मुझे कुछ ऐसी चीज करनी है जो कि मैसेज ओरिएंटेड हो, जो आप चाहते हो कि आप वो कैरेक्टर प्ले करो या एक मैसेज कन्वे करो. तो I'm still planning few projects are there on floor. Right. So जल्दी शुरू हो जाएंगे. Thank you. And you're not just an actor, not just a director, but you do social service as well. Yes, kind of. How do you balance all of this? See, you have to balance because if you don't, then बहुत गड़बड़ हो जाता है. Like you have to be very balanced in everything. घर का भी ध्यान रखना. Projects, if you're producing or directing, then you have to. So you have to be very stress free and you have to keep your mind subtle. True. If one thing goes wrong, then you can't cope up. तो वो चीजें नहीं हो पाती हैं. तो आपको वो खुद ही आपके अंदर करना पड़ता है. Okay. I feel very good, when I see such inspiring women, doing so many things. Thank you. And I also wanted to know from you, आज के टाइम पे बहुत सारे एक्टर्स हैं सुसाइड कमिट कर रहे हैं, और आइडियली उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, बट सिचुएशंस ऐसी हो जाती है इन द इंडस्ट्री कि वो सुसाइड कर लेते हैं. So what would you like to see? I would say that एक काउंसलिंग बहुत जरूरी है. See, it's not an easy line. Right. अगर आप आ रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि आपको अचानक से रोल मिलेगा या you'll get a break, sometimes you will, sometimes you won't. So it's not an Aladdin का चिराग that आपने रगड़ा and you get a job or acting का thing. There are ups and downs, and I want to urge all the newcomers, even the जो आर्टिस्ट हैं, उनको भी मैं कहना चाहती हूँ कि बॉस टेक इट इजी. एक ही लाइफ है. आगे क्या है, आप क्या बनोगे, क्या किया है, क्या होगा, यू डोंट नो. ये लाइफ में उतार चढ़ाव आएंगे. प्लीज मेंटली बी स्ट्रॉन्ग. सुसाइड करना इज नॉट द अंत ऑफ एनीथिंग, बट to rise up again and to move on in life, that is something suicide
एंड कर लेना, खत्म कर लेना इज नॉट द Not the सोल्यूशन फॉर solution. एनीथिंग. Right. बट आई हैव सीन के कुछ अच्छे आर्टिस्ट ऐसे भी हैं जो इतने सालों से काम कर रहे हैं लेकिन आज उनके पास काम नहीं है. तो उस वजह से भी फाइनेंशियल क्राइसिस है, Right, बहुत सारी right. चीजें होती हैं, होता है. आई जस्ट थिंक दैट यू हैव टू स्पीक अप. यार उसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि अगर आप काम मांग रहे हो, Absolutely. यू नो, Yeah. reach out to people. And I urge everybody, casting directors, producer directors, कि भैया it's also our responsibility as a community. Yeah. Yeah. फिल्म इंडस्ट्री इज ए कम्युनिटी. तो हर आदमी को एक फैमिली की तरह अगर आप सोचेंगे Right. तो कोई ये स्टेप करेगा नहीं. या Hmm. संभालिए Yeah, ना, yeah, एक 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 हाथ, दूसरे को एक we'll हाथ have to support, संभालना, yeah. तो वो जरूरी है. ये Hmm. नहीं कि देखते रहो तमाशा, एक गया चलो दूसरा भी जा रहा है, उसने उसकी भी फोटो पे हार टंग गया. दैट्स अ सैड थिंग. Yeah. Unfortunately, we face अनफॉर्चुनेटली that, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. इतने Hmm. बड़े बड़े एक्टर्स को कि हम देख रहे हैं कि Right. दिस इज व्हाट हैज हैपेंड. तो देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ अवेयरनेस तो हो ही गई है. Hmm. देयर इज अ ऑर्गेनाइजेशन सिंटा, Right. जो कि आर्टिस्ट की Right. एसोसिएशन है. Hmm. वो लोग अभी वो लोग उनको बुलाते हैं, क्या Hmm. कहते हैं, हीलर्स को, थेरेपिस्ट को बुलाते हैं. दैट्स अ गुड थिंग दैट Right, right. सिंटा इज डूइंग फॉर आर्टिस्ट. Yes. बट ये अवेयरनेस अब खुद आर्टिस्टों को भी अपने अंदर लाने की, इतना अपने आप को नहीं कमजोर बनाना Yes, है yes. कि आप इन चीजों से हिल के Hmm. अपनी ही जान, आप मतलब Yeah. जान इतनी सस्ती हो गई आज की तारीख में, I जान know, देना. I know. दैट्स अ सैड थिंग Yeah. बेसिकली. And you can always choose something side by side. एग्जैक्टली. And many other options हाँ, are there. रास्ते बहुत हैं, Right. लेकिन सुसाइड करना अंत नहीं है, Right. वो solution नहीं है. सोल्यूशन है ही नहीं. Right. इनफैक्ट आप देखो, एक चीज से आपका पूरा परिवार हिल जाता है. Absolutely. वन पर्सन गोज तो पूरा एक आदमी गया ना. Hmm. हो सकता है वो सोल अर्नर हो उस फैमिली का, बट उस फैमिली का क्या है उसके बाद. Right. And the parents जिन्होंने बचपन से आपको बड़ा किया, उन पे क्या बीतेगी? एग्जैक्टली. We need to think सी, about that. दोस्तों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हाँ. कभी कभी मुझे कहना भी अच्छा नहीं लगता, इंडस्ट्री को भी नहीं फर्क पड़ेगा. चले जाते हैं Hmm. लोग, उनकी श्रद्धांजलियां मनाते हैं, बट किसी को फर्क नहीं. लेकिन पड़ता किसको है बॉस? फैमिली है ना. Right. डोंट लेट दैट थिंग हैपन. True. है ना. Yeah. So, one last question. What message do you have upcoming जो हमारे artists आते हैं all the way to Mumbai अपने hometown से, you know, they have big dreams कि यहाँ जाएंगे, स्टार बन जाएंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं मन में. आप क्या मैसेज देना चाहोगे उन्हें? बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग बॉस. Yeah. अगर आप आ रहे हो ये सोच के कि काम मिल जाएगा, मैं स्टार बन जाऊंगा, तो भैया गिरने की भी तैयार. यू नो, यू हैव टू बी मेंटली दोनों side. प्रिपेयर्ड. आप ये सोच कर नहीं आओगे कि इवन इन द बिजनेस आप ले लो, Yeah. आप किसी भी चीज में जाओगे, सेटबैक्स होते ही हैं. Absolutely. तो यू, Up and down दोनों हैं. हाँ, और अगर आपको मिलता है काम, Hmm. बी डिसिप्लिन्ड, Yeah. बी फोकस्ड, बी कंसिस्टेंट. Hmm. सक्सेस आपके सर के ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए. Right. बहुत जरूरी है. बहुत जरूरी है. Hmm. कुछ लोग मैंने देखे हैं, एक शो करते, 2 शो करते, दे ऑन क्लाउड 9 फ्लाइंग, Yeah. आई एम अ स्टार, दे शो टैंट्रम्स. Yeah, yeah. दैट्स रॉन्ग. Right. हम लोग आज तक टैंट्रम्स नहीं दिखाते. Right. तो जो टैंट्रम दिखाता है ना, वो फिर Short कब, while वाला होता हाँ, है. वो हाँ. कब इंडस्ट्री वो से गायब हो जाएगा वो जाता है, पता भी नहीं चलता. चलेगा. True, true. सो बी हम्बल, बी रूटेड Right. एंड नो आप कहाँ से आए हो. Correct. ये